السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تعلیم القرآن کے کورس کا 8 ویک ہے، 7 ویک ہمارے الحمدللہ ہو چکے ہیں، تو شروع کرتے ہیں کلاس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا کر لیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور دعا کریے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سارے ہمارے پیریڈس ہیں۔ فرسٹ پیریڈ کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ پیریڈ ہے ہمارا دعا کا۔ آج کی دعا بہت اہم ہے۔ اس کا سب سے پہلے آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھ لیجیے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی پروناؤنسیشن کراؤں گی اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی۔ صبح اور شام کی دعائیں۔ صبح اور شام میں اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، 3 بار فجر کی نماز کے بعد اور 3 بار عصر کی نماز کے بعد۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وبحمدہ، اور ساتھ اپنی تعریف کے، یعنی اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، یعنی پاک ہے اللہ ساتھ اپنی تمام تعریفوں کے، اور اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ مخلوق کو ہم گن سکتے ہیں کیا؟ نہیں گن سکتے۔ ورضا نفسہ، اور اپنی ذات کی رضا کے برابر۔ وزینت عرشہ، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر۔ ومداد کلماتہ، اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیجیے ایک بار اور۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وبحمدہ، اور ساتھ اپنی تمام تعریفوں کے، عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اپنی ذات کی رضا کے برابر، وزینت عرشہ، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یعنی یہاں پر ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ویسے تو ہم ایسے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ چلیں، ترجمہ تو آپ کا ہو گیا، اب اس کی آپ پروناؤنسیشن کر لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزینت عرشہ، ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزینت عرشہ، ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ،
وزنة عرشه ومداد كلماته. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. مخلوق کی تعداد میں بہت کچھ آتا ہے، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بہت سی قسم کے پودے ہیں، تو ہم انہیں گن نہیں سکتے. اس کے برابر ہم تعریف کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے پر جو ذرے ریت کے پڑے ہوتے ہیں ہم تو انہیں بھی نہیں گن سکتے، تو ہم مخلوق کو کیسے گن سکتے ہیں. اور اس کی اپنی رضا کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، اور بقدر اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر. اللہ کے جو کلمات ہیں اس کی سیاہی کے برابر، اس کا بھی وزن ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی. چاشت کے وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں، یعنی کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جانماز پر بیٹھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے نماز کے لیے اور واپس آئے. وہ چاشت کے وقت واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا، یعنی کہ جب میں گیا تب بھی تم یہی بیٹھی تھی اور اب بھی یہی بیٹھی ہو. جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے اور وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو، یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد انہیں 3 مرتبہ پڑھا. اور سیدہ جویریہ نے جو فجر سے چاشت کے وقت تک جو بھی کلمات پڑھے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، ان سے اگر ان کو تولا جائے، ان 3 بار اس دعا کو پڑھنے کو تولا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا ان کے کلمات سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی. تو اس لیے ہمیں اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار پڑھ لینا ہی کافی ہے، بنسبت اس کے کہ ہم بہت بڑی بڑی تسبیح یا چاشت کے وقت تک وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں. ان سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اس سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس دعا کو اب سے آپ نے اپنی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سیکنڈ پیریڈ کی طرف چلتے ہیں. سیکنڈ پیریڈ ہے ہمارا تجوید کا. تجوید میں پچھلی کلاس میں ہم نے حرکات ثلاثہ سیکھا تھا. کلاس میں آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، جیسے آپ نے یہاں پر کیا پتہ چلا کہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو 3 بار پڑھنا ہے. وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ فجر کی نماز سے لے کر چاشت کے وقت تک وہیں بیٹھی رہیں اور کلمات پڑھیں. تو آج کا ہمارا تجوید کا لیسن ہے حرکت زبر. یہ اوپر جو اس طرح کا نشان ہوتا ہے اس کو زبر بولتے ہیں. بچے حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش جان چکا ہے، لہٰذا اب ہجو کر کے الف زبر آ، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا وغیرہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچے کو رواں رواں بغیر ہجو کے پڑھایا جائے. یعنی کہ آپ نے اسے بغیر ہجو کے پڑھنا ہے. الف زبر آ، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا اس طرح نہیں پڑھنا، آ جا اس طرح رواں رواں پڑھنا ہے. جیسے آ دا. بچہ نہ سمجھے تو بتایا جائے کہ جب الف زبر آ ہو تو الف آ بن جاتا ہے اور دال دا
पढ़ा जाता है। कोशिश करें कि बच्चा खुद ब खुद पढ़े, अगर समझ ना आए तो दोबारा समझाएं, लेकिन हिज्जों से ना पढ़ाएं, रवा रवा पढ़ाया जाए। और याद रहे कि बच्चा एक हरकत से ज़्यादा खींचकर ना पढ़े। यानी कि यह क्या पता चल रहा है, एक तो हमें हिज्जों से नहीं पढ़ना, जैसे हम अमूमन बच्चों को हिज्जों से पढ़ाते हैं, अलिफ ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, तो वो इसी तरह हिज्जों से पढ़ना सीखते हैं। लेकिन अगर उनको एक एक सिंगल लेटर ही रवा रवा पढ़ाए जाएंगे तो वो उसको आगे भी उसी तरह अप्लाई करेंगे और मिलाकर पढ़ना सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। तो हमें बच्चों को भी रवा रवा पढ़ाना है। आप चाहे तो इस यस्सरनल कुरान को अपने किड्स के लिए भी यूज़ कर सकती हैं कि आप उनको इसमें पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो उनको अच्छे से समझाएं। और हरकत, ज़बर को सिर्फ एक हरकत खींचना है, क्योंकि ज़बर है तो सिर्फ एक हरकत रखना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। आ, आ, जा, दा, ज़ा, सा, शा, सा, दा, आ, गा, क़ा, का, ला, मा, ना, वा, बा, ता, सा, हा, खा, रा, ज़ा, ता, ज़ा, फा, हा, हा, या, अबा। इसको आबा या आबा नहीं पढ़ना, अबा एक हरकत, बा, अबा। अदा, ज़रा, दमा, रजा, वबा, दना, बला, लका, कफा, तरा, जआ, फवा, जआ, मना, लहा। यहाँ पर 3 वर्ड्स के हैं, फ़अला, 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 ख़लक़ा, अहदा, मअका, मतरा, नबअ, क़रअ, हदरा, अखज़ा, कफ़रा, सलहा, क़तला, बलगा, मनअ, लज़हब, फवजद, फजअल, वज़कर, खलक़क, वअख़ज़। नेक्स्ट पीरियड है हमारा अरेबिक ग्रामर का। आप अपनी अरेबिक ग्रामर की बुक निकाल लीजिए और यहाँ पर देखिए आज का जो हमारा लेसन है ये 2 एक्सरसाइज है इसमें हमारी, जिसमें मैं आपको आज फर्स्ट वाली कराऊंगी, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे ये वाली। आज का लेसन है हमारा इसमें इशारा, यानी कि वो इसम का तो आपको मालूम ही होगा, नाउन जो होते हैं, नाउन जैसे कोई भी इंसान है, किसी चीज़ का नाम है तो वो इसम में आ जाता है। किसी शहर का नाम, इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, वो सब इसम में आ जाते हैं। तो आज का है हमारा इसमें इशारा करीब। इसमें इशारा करीब यानी कि जो चीज़ हमारे पास है, हमारे आसपास मौजूद है, उसे हम इसमें इशारा करीब कहते हैं, ठीक है। इसमें इशारा की जो पहचान है, एक तो होता है इस्म जिसमें हमें खाली नाउन लिखना होता है, और एक इस्म के साथ जो ये लफ्ज़ मौजूद हो तो वहाँ पर इसमें इशारा करीब होता है। यानी कि जहाँ पर इसमें इशारा यानी कि हाजा है, हाजा यानी कि ये। इसमें देखें आपकी कितनी कैटेगरीज है। इसमें इशारा करीब मुज़क्कर मैस्कुलाइन और मोनस फेमिनाइन, 2 तरह के होते हैं, मुज़क्कर और मोनस। और इनमें फिर सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल, ये आपको पहले भी समझाया गया था। सिंगुलर होता है 1 और मुसन्ना यानी कि ड्वेल यानी कि 2। उसके बाद है जमा यानी कि प्लूरल, 3 या 3 से ज़्यादा। अगर हाजा है तो यानी कि एक चीज़ की तरफ इशारा है, हाजा, हाजानी यानी कि 2, हाजिही
फीमेल में आ जाएगा। हाज़िही, इसमें हा की अलामत है तो ये भी मोनस की अलामत होती है। हाज़िही मोनस के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए। हातानी दो फीमेल के लिए, और हाउलाई जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो इस टेबल को आपने याद करना है। इसमें इशारा कितने हैं? 5 हैं, और इसमें मोनस कौन से हैं और मुज़क्कर कौन से हैं ये आपको याद करना है। और इनके एग्जाम्पल्स आपको कुरान से निकालने हैं। जैसे हाजा है, अब किताब क्या है? किताब है हमारा इस्म। किताब नाम है कॉपी का, किताब का नाम है किताब। तो इसके आगे हाजल, हाजल किताबु, यानी कि ये किताब। ठीक है, इस तरीके से हमारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो जैसे आप अपना कुरान को रीड करेंगे वहाँ पर आपके ये लफ्ज़ आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आते जाएंगे आप उनको फिल करते जाइएगा। आपने जो अरेबिक ग्रामर की नोटबुक बनाई है उसमें आपने इस टेबल को चाहे तो बना ले, चाहे तो इस टेबल को ना बनाए, लेकिन इस तरह के लेटर्स को लिखकर, जैसे आपने हाजा लिखना है, हाजा आपने कॉलम में लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हाजा के एग्जाम्पल्स एंड कम से कम 5 एग्जाम्पल्स की लाइंस आप यहाँ छोड़ दें और उसके सामने उसका तर्जुमा भी लिख लें। ठीक है, और उसके बाद नीचे से लाइन लगाकर हाजानी, हाजानी का लिख लीजिए 5, उसके लिए भी 5 लाइंस छोड़ दें। एंड उसके बाद हाजिही और हातानी, ये 4 हो जाएंगे आपके। एंड सबसे लास्ट में आप करिएगा हाउलाई का, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज होता है। जैसे आप स्केच डालेंगी हाजा, हाजा स्केच डालिए आपने, तो इसके यहाँ पर मुज़क्कर भी लिख लें ताकि आपको याद रहे। अगर आप इसको कभी पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि हाजा मुज़क्कर के लिए यूज होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ग्रामर का आपका यही है। इसमें इशारा करीब यानी कि पास की तरफ। अब किताब, ये किताब, ये किताब यानी कि जो किताब हमारे आसपास है ये किताब। अगर किताब दूर होगी तो हम बोलेंगे वो किताब। तो ये करीब का है तो इसलिए इसमें इशारा करीब। हाजा ये, हाजानी ये दोनों, हाउलाई ये सब, और मुअन्नस में हाजिही ये, हातानी ये दोनों, हाउलाई ये सब। ठीक है, तो हाउलाई मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड है हमारा हिफज का। हिफज में हमारी सूरह नबा की आयत नंबर 30 तक कंप्लीट हो चुका है। आयत नंबर 30 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे आयत नंबर 31 से 35 तक। आज हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तकीना, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा। हदाइक़, हदाइक़। हमजा, हमजा की तरह इसको प्रोनाउंस नहीं करना। आ, आ नहीं पढ़ना इसको। आ नाबा, आ नाबा सॉफ्टली पढ़ना है। हदाइक़ व अअनाबा।
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. عین کو واضح کرنا ہے اور تا پر قلقلہ نہیں کرنا. وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا. یہاں پہ تنوین کے بعد دال ہے یعنی کہ یہاں پر اخفا ہوگا. کأسن دہا کا نہیں پڑھنا اس کو کأسن دہاقا وکأسن دہاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها. سین کی آواز کو واضح کریں. لا يسمعون فيها. لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. پیریڈ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پیریڈ ہے ہمارا ترجمہ تفسیر کا. تو سب سے پہلے جو آپ کا اس کا نیکسٹ لیسن ہے آپ اس کے کوشچنس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. نیکسٹ لیسن ہے آپ کا آیت نمبر 30 سے 39 تک. تو جو آپ نے اس بار کلاس میں لیکچر سننے ہیں اس کے کوشچنس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. سب سے پہلے آیت نمبر 30 سے جن کو اردو نہیں آتا وہ لکھ لیں ان کوشچنس کو. آیت نمبر 30 سے پہلا سوال. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟
दूसरा सवाल है आपका आयत नंबर 31 और 32 से। हजरत आदम को फरिश्तों पर किस बिना पर फजीलत दी गई? हजरत आदम को फरिश्तों पर किस बिना पर फजीलत दी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 34 से। इब्लीस के इनकार करने की बुनियादी वजह क्या थी? इब्लीस ने जो इनकार किया था उसकी बुनियादी वजह क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 35 से। हजरत आदम और हव्वा को क्या हुक्म दिया गया है? क्या उस दरख्त का कोई नाम बताया गया है? इसका मतलब यह है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा को क्या हुक्म दिया गया है? क्या उस दरख्त का कोई नाम बताया गया है? लेसन में उस दरख्त का कोई नाम बताया गया है तो वो यहाँ आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 36 से। हजरत आदम और हव्वा को किसने फुसला दिया था? किसने फुसला दिया था यानी कि बहकाया था? आयत नंबर 37 से नेक्स्ट क्वेश्चन। तौबा की 3 शराइत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 38 से। खौफ और गम से निजात किन लोगों के लिए है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आयत नंबर 38 से है। आज हमारा कुरान के साथ क्या तर्ज अमल है? हमें अपने बारे में यहाँ पर लिखना है कि हमारा तर्ज अमल कुरान के साथ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 39 से। आयत नंबर 39 में आग की सजा किन लोगों के लिए बताई गई है? नेक्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पीरियड है हमारा रब्बी जिद्दी इल्मा की बुक का। पहले मैं आपको इसका दोनों का होमवर्क आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पर कुरान फॉर ऑल में आपको 2002 एंड 3 पर जाना है एंड यहाँ से आपने तालीमुल कुरान का पारा नंबर 1 एंड लेसन 7 आज आपका सुना जाएगा कि आपने उसमें से क्या लिया। एंड होमवर्क है आपका लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको इसकी रेसिएशन करनी होती है। स्टार्टिंग में रेसिएशन एंड उसके बाद ट्रांसलेशन आपने अपने जुज में फिल करना होता है। समरी तफसीर है आपकी आयत नंबर 30 से 39 तक। डिस्कशन होगा एंड उसके बाद फिर से रेसिएशन है। अगर आप रेसिएशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका कुरान इंशाल्लाह दुरुस्त होता जाएगा तजवीद के साथ। एंड आपने कुरान की जो आयत जिस आयत से आप अपने लिए पॉइंट्स लेते हैं उस आयत की आपने तिलावत भी करनी होती है तो उसमें आपकी आसानी हो जाती है। जिस आयत से आप अपने पॉइंट्स लेती है ना उस आयत की रेसिटेशन ज़रूर किया करें ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना आए। एंड आपकी जो हदीस की बुक है रब्बी जिदनी इल्मा उसके लेसन में आपको होमवर्क में क्या करना है, यहाँ तक आपका हो चुका है 1 से लेकर 8 तक एंड आपने करना है 9 से लेकर 11 तक का लेसन। ये लेसन आपने इस बार करना है, ठीक है। आप लोग बहुत स्लो वर्क कर रहे हो वरना हमें इसके 2-2 लेसन दिए जाते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आपको 2-2 लेसन ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया करें और टाइम से क्लास में आया करें। आपके होमवर्क आपके यही हैं। अब आप मुझे अपने पॉइंट्स वगैरह बताइए जो भी आपके पॉइंट्स हैं पारे के। रहमानिर्रहीम। यहाँ पर उस्ताज़ा ने बताया कि अल्लाह ताला कोई भी चीज का यानी जैसे मच्छर का भी मिसाल देने से नहीं शर्माता। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बात हमें ये समझाई जा रही कि ईमान वालों के लिए ये होता है कि अल्लाह ताला क्या कौन सा एग्जाम्पल दे रहे। बस हमें उन लोगों को ये ईमान वालों की ये होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ कौन सी पॉइंट बोलना चाह रहे और उस पर भागकर यानी अल्लाह ताला की इताअत करने के लिए वो तैयार होते हैं। वो अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल दे रहा है या किसी और का वो नहीं देखते। उनको उससे मैटर कुछ नहीं करता। बस उन्हें ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि अल्लाह ताला असल में क्या फरमा रहे, क्या इरादा कर रहे, हमें क्या बताना चाह रहे, ये बात होती है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि बाज लोग ये सुनने के बावजूद भी रास्ते से हट जाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कहा यानी मच्छर को क्यों कहा, यानी इस पॉइंट को लेकर वो उधर गलत रास्ते पर
चले जाते, ये नहीं सोचते कि उन्हें अल्लाह ताला असल में क्या बात समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। और यहाँ पर हमें फासिक के बारे में भी बताया गया है कि फासिक वो होता है जो अल्लाह के साथ अहद कर कर फिर उसको तोड़ देता है, अल्लाह की सारी हदों को पार कर देता है। अल्लाह ताला ने जो भी हदें बताई है, जो भी अहकामात बताए हैं, जिन जिन कामों को किस तरीके से करना है, वो उन्हें तोड़ देता है, क्योंकि उसको वहां पर अपनी मन मर्जी नहीं चलती, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने नफ्स के मुताबिक करना चाहता है। और सिस्टर, आपने इससे अपने अमल के लिए अब ये जो फासिक का जो किरदार यहाँ पर है, तो आपने उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे आपने फासिक का पॉइंट लिया है, तो अब आपने क्या करना है। फासिक होता है वो अल्लाह ताला की हुदूदों को उल्लंघता है, उन्हें तोड़ देता है, अल्लाह ताला से वादा करने के बाद अल्लाह ताला का वादे को तोड़ देता है, तो वो भी पक्का वादा करके तोड़ देता है। तो इसमें हमारे लिए पॉइंट क्या है कि हमने अगर किसी से कोई वादा करना है तो वादे को नहीं तोड़ना। और इसके अलावा फासिक क्या करता है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है वो उसको काटता है। जैसे रिश्तेदारी में एक दूसरे से रिश्ते का ताल्लुक काटना और उनके साथ उसने सलूक ना करना, रिश्तों को काटना, तो उन चीजों को जोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो उनको काटता है। और इसके अलावा फासिक क्या करता है कि वो जमीन में फसाद करता है, क्योंकि फासिक वही होता है कि वो फसाद करता है, बिगाड़ पैदा करता है, लड़ाई झगड़े करता है। तो इसमें हमारे लिए पॉइंट क्या है कि एक तो हमें वादों को कर कर उन्हें तोड़ना नहीं है, और वो भी खासकर पक्का वादा तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। वैसे तो हमें कोई भी वादा नहीं तोड़ना। और दूसरे पॉइंट में हमारे लिए सबक क्या है कि हमने रिश्तों को जोड़ कर रखना है, उनको रिश्तों को नहीं काटना। और इसके अलावा हमने फसाद नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, सिला रहमी करनी है। यही लोग खसारा पाने वाले हैं, दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी खसारा पाने वाले हैं। तो अगर आपने कोई पॉइंट लिखा नहीं होता, तो जैसे मैं आपको क्लास में हाईलाइट कराती हूँ, आपको याद दहानी कराती हूँ, तो वो आप लिख लिया करें। और इसमें ये भी है कि जिस शख्स को ये पसंद है कि उसकी उम्र में वसअत हो, रोजी में बरकत हो, वो सुलह रहमी करे। एक तो झगड़ा फसाद करने से उम्र कम हो जाती है और बरकत खत्म हो जाती है, ये सबक यहाँ पर दिया जा रहा है। और हिदायत पाने के लिए रिश्तों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है हिदायत पाने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम दूसरों को लेक्चर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि रिश्तों को जोड़ो, और हम खुद ही वैसा कर रहे हैं कि रिश्तों को काट रहे हैं, तो वो लोग हमसे क्या सीखेंगे। वो हमारे पीठ पीछे हमारी बातें करेंगे कि वो खुद तो ऐसा करते हैं और हमें ये रिश्ते को जोड़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं और खुद तो जोड़ के नहीं रखते। तो इस तरह भी हमने पहले खुद अमल करना है, उसके बाद हमने दूसरों तक पहुँचाना है। और इसमें ज़मीन का भी था कि अल्लाह ताला ने जैसे इसमें ज़मीन के बारे में बताया कि ज़मीन पर जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ने बनाया है, और अल्लाह की नेमतों को अगर हम गिनना चाहें तो हम उन्हें गिन ना सकेंगे, क्योंकि बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला की ज़मीन पर। अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, इसके अंदर जो भी तख्लीक है, हत्ता कि दरख्त से लेकर चींटियों तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, इंसानों से जानवरों तक, जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने बनाया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो दो आसमानों के दरमियान 7 आसमान होते हैं, और दो आसमानों के दरमियान का फासला इतना है कि तो 500 साल तो हम आजकल हमारी ज़िंदगी भी 500 साल नहीं होती, हम बचपन में ही मर जाते हैं, जवानी में, बुढ़ापे में, वक्त का कोई पता नहीं होता कि किसको कब मौत आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 500 साल की मसाफत, दो आसमानों को पार करने में 500 साल की मसाफत तक का वक्त लगेगा। पारे का तो हमारा हो चुका है, नेक्स्ट पीरियड की तरफ आ जाएं। आप अपना, आपने रब्बी सिद्दील इल्मा में से क्या पॉइंट लिए कि आपने इसका लेसन सुना था, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.